Hello everyone, today I am going to start with the performance of contract of sale. In contract, the parties are bound to perform their obligations under the contract. As in contract of sale, the seller and the buyer are bound to perform some act according to the contract, and they are also free to decide that how the performance can be done, कि whether delivery late में होगी या तुरंत डिलीवरी होगी या इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी होगी एंड पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा या दोनों चीज पोस्टपोन होगी. दिस विल ऑल बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स. विल स्टार्ट विद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड from section 31 to section 44. We'll start with section 31. Section 31 talks about the duties of the seller and the buyer. It is the duty of the seller to deliver the goods to the buyer, and it is the duty of the buyer to accept the goods and to make the payment. यहाँ पे seller की ड्यूटी है डिलीवर करना गुड्स को और बायर की ड्यूटी है उस गुड्स को एक्सेप्ट करना और उसका पेमेंट करना. Now section 32 which talks about that the delivery and the payments are concurrent. That is, the seller must be ready and willing to make the delivery in exchange of the price. Okay, and the buyer shall be ready and willing to accept the goods and make the payment. यहाँ पे seller must be ready and willing. So here ready and willing ये नहीं है कि I am ready मतलब at that moment only he is ready. यहाँ पे by the intention of the parties it can be said कि हाँ he is ready and willing. अगर गुड्स को पैक्ड करना हुआ या उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाना हुआ और सेलर ने ऐसे कोई परफॉर्मेंस की, देन बाय दैट परफॉर्मेंस इट कैन बी सेड दैट ही इज रेडी एंड विलिंग. या फिर बायर मेक्स अरेंजमेंट टू मेक द पेमेंट, वो पैसों के लिए अरेंजमेंट करने लगता है, देन इन दैट केस इट विल बी सेड दैट ही इज रेडी एंड विलिंग टू मेक द payment. This has been provided under section 32. Now we come to section 33 which talks about the delivery. That how delivery can be done as according to the parties. जैसे पार्टी ने अग्री किया वैसे डिलीवरी हो सकती है, चाहे वो एक्चुअल पोजेशन से डिलीवरी हो सकती है, चाहे वो गोडाउन की की से भी डिलीवरी हो सकती है, या फिर अगर किसी थर्ड पार्टी के पास पोजेशन है and seller convey that thing to the third party कि now the buyer is the owner of that good, and जो third party होती है वो इस चीज को buyer को acknowledge करे कि now I am acting on your behalf. इस तरह से भी डिलीवरी हो सकती है which is the constructive delivery. This has been provided under section 33. Now we come to section 34 which talks about the part delivery. Whether the delivery is part delivery or the whole of the delivery will depend upon the intention of the parties. कि parties पार्ट डिलीवरी सिर्फ चाहता है या पूरी डिलीवरी चाहता है, वो पूरा बायर पे डिपेंड करेगा. अगर बायर सेलर से बोलता है कि मुझे पूरे गुड्स एक साथ वे करना है या मुझे पूरे 30 टन के एप्पल जूस एक साथ बनाने हैं, सो इन दिस द बायर विल बी लायबल और बायर विल बी बाउंड फॉर होल ऑफ द डिलीवरी. बट अगर बायर यहाँ पे बोलता है कि मुझे बस पार्ट स्टेक ऑफ हेट चाहिए या मुझे सिर्फ 200 बैग्स ऑफ राइस चाहिए, 1000 बैग्स का कॉन्ट्रैक्ट है, वो बोल रहा है मुझे सिर्फ 200 बैग्स ऑफ हे चाहिए, मुझे चेक करना है कि कैसे है. सो इन दिस केस he will be liable only for the part of that delivery. यहाँ पे मे बी उसका इंटेंशन नहीं है पूरी होल ऑफ द डिलीवरी लेने का. ओके, सो दिस विल डिपेंड अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कि उसको पार्ट डिलीवरी लेनी है या वो पार्ट डिलीवरी के लिए इंटरेस्टेड है या वो पूरे होल ऑफ द डिलीवरी के लिए इंटरेस्टेड है. This has been provided under section 34. Now we come to section 35 which talks about that the buyer must apply for the delivery. In this, if there is some express contract तब तो seller की ड्यूटी होती है कि डिलीवरी करने का, otherwise the buyer has to apply for the delivery. buyer बोलेगा कि भाई आप प्लीज मेरी डिलीवरी कराओ. Okay, it is the duty of the buyer. Now we come to section 36 which talks about the rules of delivery कि कैसे डिलीवरी होनी है, प्लेस, टाइम. दिस इज ऑल प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 36. 36 सब क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द प्लेस कि
प्लेस पार्टीज विल डिसाइड कि कहाँ पे डिलीवरी होनी है. अगर प्लेस डिसाइड नहीं है देन at that place where the contract has been made, या when it is a future goods, अगर किसी future goods का contract है then at that place where the goods has been manufactured या produced, जहाँ पे वो manufactured हुए थे, then that place will be the place of delivery. Time when the parties had decided कि कब delivery करनी है, या फिर कोई reasonable time होना चाहिए. Okay. 3. Atonement. In this, अगर थर्ड पर्सन के पास पोजेशन है गुड्स का जो कि सेलर के बिहाफ में एक्ट कर रहा है, देन सेलर विल कन्वे दिस थिंग कि बायर, नाउ द बायर इज द ओनर, एंड वो जो थर्ड पार्टी है वो ये चीज एक्नॉलेज करे बायर को दैट नाउ आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ, एंड बायर उसको एसेंट देता है ओके कि हाँ आप मुझे मेरे बिहाफ में आप मेरे गुड्स को होल्ड कर रहे हो. इन दिस केस द third party will be bound. Okay, this has been provided under section 36 subclause 3. Now section 36 subclause 4 talks about the tender or the time of delivery, कि क्या reasonable time होगा. As in the case of startup versus McDonald, in this contract हुआ कि मुझे delivery चाहिए last fortnight of March में, मतलब मुझे last 2 weeks of March में मुझे delivery चाहिए, एंड यहाँ पे सेलर जो होता है वो 31 मार्च को अराउंड 8:30 PM उसको गुड्स को डिलीवर करता है. सो इन दिस केस द बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स. यहाँ पे वो ये नहीं बोलेगा कि आप 31 मार्च को क्यों दे रहे हो, बिकॉज यहाँ पे बोल दिया था कि आपको लास्ट मार्च तक देना है. सो इन दिस अगर 31 मार्च के 8:30 PM इज द रीजनेबल टाइम, तो यहाँ पे बायर विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स. अगर वो रात के 2 बजे या 3 बजे बोल रहा है भाई मैं आपके गुड्स लेके आया हूं, देन दैट इज नॉट द रीजनेबल टाइम. ओके, सो द डिमांड ऑफ द गुड्स मस्ट बी मेड इन अ रीजनेबल टाइम. नाउ द लास्ट क्लॉज विच टॉक्स अबाउट द एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे कोई भी पैकेजिंग के एक्सपेंसेस हैं या डिलीवरेबल स्टेट में बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं, देन सेलर इज बाउंड टू पे ऑल द एक्सपेंसेस. वी कम टू सेक्शन 37 व्हिच टॉक्स अबाउट व्हेन देयर इज वेरिएशन इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स. ठीक है, देयर आर 3 क्लॉसेस. क्लॉज 1, जब सपोज मैंने 100 बैग्स का कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 100 बैग्स ऑफ राइस दो, एंड जब एक्चुअल डिलीवरी हुई तो उसमें सिर्फ 60 बैग्स ऑफ राइस थे. सो इन दिस द बायर हैज द राइट कि या वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है, या फिर वो 60 बैग्स को लेके जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिस प्राइस पे वो उसको पे कर देगा. ओके, यहाँ पे अगर जिस क्वांटिटी की बात हुई है उस क्वांटिटी से कम राइस या कम गुड्स डिलीवर हुए हैं, then the buyer has the right that he can repudiate the contract, वो खत्म कर सकता है, या फिर उसे जितने भी गुड्स थे उसका पेमेंट करके वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है. सेकेंड कंडीशन, when there is excess delivery. यहाँ पे 100 बैग्स ऑफ राइस की बात हुई एंड 150 बैग्स ऑफ राइस हो गए हैं, देन इन दैट केस द बायर हैज द राइट कि he can take that 100 बैग्स, जो 100 बैग्स थे वो उसको रख सकता है और बाकी 50 को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर वो 50 को भी ले सकता है और फिर उसकी प्राइस पे कर सकता है. थर्ड, व्हेन देयर इज अ मिक्स डिलीवरी. सपोज बात हुई कि मुझे 80 रुपीज वाले क्वालिटी वाला राइस चाहिए 100 बैग्स. ओके, बट यहाँ पे सेलर क्या करता है, 50 बैग्स जो होते हैं वो 80 रुपीज के होते हैं एंड जो 50 बैग्स होते हैं वो 20 रुपीज राइस के होते हैं. सो इन दिस द बायर हैज द राइट दैट ही कैन रेप्यूडिएट होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है, या फिर जो 80 रुपीज वाले राइस थे उसको रख के बाकी को रिजेक्ट कर सकता है. ओके, दीज आर द कंडीशंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी. नाउ वी कम टू सेक्शन 38 व्हिच टॉक्स अबाउट द इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज. जनरली जो डिलीवरीज होती हैं वो हमेशा बल्क में होती है, बट if parties are agreeing कि installment deliveries हो सकती है, then in that case installment deliveries can be done. Section 38 subclause 2 talks about कि installment deliveries हो रही है and हर installment का separate payment हो रहा है, and suppose अगर सेलर अपने पार्ट में डिलीवरी करना रिफ्यूज कर देता है
या फिर डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई करता है, then in that case whether the buyer has the right to repudiate whole of the contract या सिर्फ उस इंस्टॉलमेंट को repudiate कर सकता है. So in Motilal versus Nita case, in this there was a contract of cotton bales. यहाँ पे cotton bale सप्लाई होनी थी and first installment में the cotton bale was okay. बायर ने प्रॉपर एग्जामिन किया और उसने वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया. बट जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया, इन दैट सेकेंड इंस्टॉलमेंट उस कॉटन बेल्स में कुछ दे वर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी एज अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे बायर क्या करता है, बायर फिर बाकी इंस्टॉलमेंट को रेप्यूडिएट कर देता है, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है. इन दिस केस ही हैज द राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अभी सिर्फ वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई थी तो वो उसका पेमेंट करेगा और बाकी कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर देगा बिकॉज मे बी बाकी की इंस्टॉलमेंट भी खराब है, तो वो यहाँ बायर रिस्क नहीं ले सकता बिकॉज अभी स्टार्टिंग है इंस्टॉलमेंट की. सो ही कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. But in the case of Maple Flock versus Universal Furniture, in this there was a contract of 100 tons of flock. Flock मतलब animals होते हैं जो बहुत suppose sheep और goats या birds के contract हो रहे हैं. In this case installment में delivery होनी थी. Okay, 15 installments perfectly आए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बायर ने एक्सेप्ट किया. 16th इंस्टॉलमेंट जब आया तो द गुड्स वाज नॉट गुड. ठीक है, वो प्रॉपर नहीं थे, वो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन नहीं थे. फिर उसके बाद बाकी जो 16, 17 बाकी जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो भी सही थी. सो इन दिस केस द बायर कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट जस्ट बिकॉज सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट गलत थी. ठीक है, वहां पे वो सिर्फ उस इंस्टॉलमेंट को वो पे नहीं करेगा या उसको बंद कर देगा. यहाँ पे वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकता है बिकॉज यहाँ पे बाकी तो इंस्टॉलमेंट में गुड्स सही थे, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में गुड्स खराब आए. सो इन दिस केस ही कैन नॉट रेप्यूडिएट द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 38. नाउ वी कम टू सेक्शन 39, डिलीवरी टू कैरियर और wharfingers. In this, when there is a contract between the seller and the buyer that the goods have to be sent by carrier. अगर यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि गुड्स किसी रेलवे के थ्रू या सी रूट के थ्रू आने हैं, देन इन दैट केस जैसे ही सेलर उस कैरियर को गुड्स डिलीवर करेगा, इट विल ऑपरेट एज द डिलीवरी टू द बायर. ठीक है, फिर यहाँ पे सेलर विल नॉट बी बाउंड जो भी, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि सेलर वो सारे जो कैरियर के चार्जेस होंगे या कुछ भी कॉस्ट लगेगा, सेलर इज बाउंड टू गिव ऑल दैट cost. Okay, and one more thing, it is important कि there must be a contract between the seller and the carrier. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है क्योंकि अगर कुछ गुड्स में डैमेज होता है, सपोज उस ट्रांजिट में कैरियर अब गुड्स को ले जा रहा है बायर के पास एंड उस बीच अगर कुछ डैमेज होता है गुड्स में और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, देन इन दैट केस बायर उस गुड्स को मना कर देगा लेने के लिए एंड सेलर विल बी लायबल. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब सेलर गुड्स को डिलीवर कराए टू द कैरियर, इट इज इंपॉर्टेंट कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट करे जिसमें कि सारे गुड्स की डिस्क्रिप्शन हो, इतने नंबर ऑफ गुड्स हैं, उसका वे ये है, एंड देन ओनली द बायर विल बी बाउंड. ओके, एंड सेक्शन 39 सब क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट कि अगर शिप के थ्रू हमारा गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है शिप के थ्रू, देन इट इज इंपॉर्टेंट कि सेलर जो है वो उस गुड्स का इंश्योरेंस करा ले एंड ये इंफॉर्मेशन कि दैट गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर बायर को देनी चाहिए. यहाँ पे इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गुड्स बहुत ज्यादा हैं एंड यहाँ पे डैमेज की भी ज्यादा चांसेस हैं. So in this case the insurance of the good is important. But अगर buyer बोलता है कि मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे uninsured goods चाहिए, तब seller will not bound to do the insurance. Okay, this has been provided under section 39 ताकि गुड्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाए. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भाई वो जो कंपनी रहेगी, वो जो कैरियर है, वो फिर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेगा गुड्स को प्रोटेक्ट करने में.
This has been provided under section 39. Now we come to section 40, which talks about risk when the goods deliver. जब goods deliver हो रहे हैं, उसकी place change कर दी है, तब क्या होगा रिस्क का. So in this, अगर seller agree करता है कि ठीक है, decide हुआ कि डिलीवरी पोर्ट ए में करानी है, ओके, बट बाद में बायर बोलता है कि नहीं, हम पोर्ट बी में डिलीवरी कराते हैं, एंड सेलर अग्री कि ठीक है, हम पोर्ट बी में डिलीवरी करा देते हैं, जो भी होगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. बट अगर कोई भी डैमेज होता है उस पोर्ट बी में ले जाने में, देन इन दैट केस, बिकॉज यहाँ पे प्लेस चेंज हुई है, देन बायर विल बी बाउंड टू बेयर दैट रिस्क. ठीक है, फिर बायर विल बी लायबल फॉर दैट रिस्क. Now we come to section 41. 41 talks about that the right of examination of the buyer. यहाँ पे बायर के पास पूरा राइट है कि जब गुड्स उसको डिलीवर हो रहे हैं, वो उसको प्रॉपरली एग्जामिन कर ले, प्रॉपरली उसको देख ले कि वो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है. सो दिस इज द राइट ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स. नाउ वी कम टू सेक्शन 42 विच टॉक्स अबाउट द एक्सेप्टेंस, कि सिर्फ डिलीवरी लेने से एक्सेप्टेंस नहीं होता है, प्रॉपर इंटीमेशन सेलर को देनी पड़ेगी दैट आई हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, या फिर वो गुड्स को यूज करने लगे, ठीक है, तब एक्सेप्टेंस माना जाएगा. या फिर थर्ड सिचुएशन क्या है, एक रीजनेबल टाइम चला जाए, ना वो इंटीमेशन दिया है ना वो रिजेक्ट किया है, एंड वो रीजनेबल टाइम चला जाए, देन इट विल बी डीम्ड कि भाई अब वो he has accepted the buyer has accepted the goods. This has been provided under section 42. Now we come to section 43, that is the right of rejection of the buyer. This has been provided 43. In this, suppose अगर goods की delivery buyer को मिल गई है, okay, and जो goods हैं they are not according to the description, ठीक. So in this case the buyer can reject the good. वो उसको बोलेगा कि भाई आई हैव रिजेक्टेड द गुड्स. तो यहाँ पे उसका सिर्फ बोलना इज इनफ. यहाँ पे उसको गुड्स को डिलीवरी नहीं करानी है कि बैठ के वो डिलीवरी कराएगा, जब लास्ट गुड उसको मिल जाएगा तभी माना जाएगा कि गुड्स रिजेक्ट हो गए. ऐसा नहीं है, ओके. यहाँ पे सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देगा कि दैट आई हैव रिजेक्टेड द गुड्स इज सफिशिएंट, ओके. नाउ वी कम टू सेक्शन 44 विच टॉक्स अबाउट द लायबिलिटीज ऑफ द बायर ऑन द रिफ्यूजल ऑफ द गुड्स. ठीक है, यहाँ पे गुड्स अगर बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया या उसको रिसीव करने में डिले कर दिया, देन इन दैट केस द बायर विल बी लायबल फॉर ऑल द चार्जेस. सपोज अगर सेलर ने गुड्स वेयर हाउस में रखे हुए हैं, ठीक है, और बायर उसको लेने में बहुत डिले कर रहा है, आराम आराम से ले रहा है, बट यहाँ पे सेलर जो है उसको वेयर हाउस में रखने के लिए चार्जेस दे रहा है, उसका रेंट दे रहा है. सो इन दैट केस द बायर इज बाउंड टू गिव दैट चार्जेस. जो भी सेलर एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहा है ड्यू टू द डिले इन डिलीवरी, वो बायर विल बी बाउंड टू गिव ऑल दैट चार्जेस टू द सेलर. ठीक है, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 44. एज इन केस ऑफ डेम्बी ऑल्सो, वहां पे 30 टन पूरा एप्पल जूस साथ में उसने क्रश कराया, एप्पल जूस बनाया, एंड उसने डिलीवरी करने में लेट कर दिया, राइट, उसने इंस्टॉलमेंट लेने को मना कर दिया. सो इन दैट केस द बायर विल बी बाउंड फॉर होल ऑफ द इंस्टॉलमेंट. ठीक है, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 44. सो दीज वर द सेक्शंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. थैंक यू.